welcome to FutureServe Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar and I'm serving as a communication expert at FutureServe, and the lady next to me is Miss Sadaf, and she is a very brilliant career counselor of FutureServe. So guys, today we are going to talk about the international exposure. अब international exposure एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको every Monday, every Tuesday, every Wednesday इसके बारे में बताती हूँ अपने introduction में, अपने sessions के introductions में, that FutureServe is basically providing you with three services, the major services, that is the career counseling, the international exposure, and the skills development. So today we are going to talk about the international exposure in a little bit of detail, and Miss Sadaf is going to help me out in such regard. So Miss Sadaf, what do you have in pockets? Okay, first of all, let me introduce what basically international exposure is for the viewers who are new to our live session. International exposure is basically, as most of our viewers might know, that our top management has been living in UK for more than 15 years. Okay. So they know the culture and how to live over there, the laws, the regulations, and they provide our students with the necessary knowledge before they go there. Yeah. ताकि ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि obviously the culture difference is huge. We have a huge culture difference between the culture of this country where we are living and the country over whatever destination country that our student intends to go. तो वो कल्चर डिफरेंस की वजह से जो है मोस्टली ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो कल्चर शॉक होता है, वो जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे हम कैसे अब एडजस्ट करें, कैसे अब सरवाइव करें. तो वो सब जो है वो इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ख़त्म करने के लिए हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो वहाँ चूँकि वहाँ पे रह चुके हैं, एक्सपीरियंस को जो है वो यूज़ में लाते हैं और वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक ओवरव्यू किस्म का देते हैं, आप कह सकती हैं, और उनको बताते हैं कि वहाँ पे बेसिकली कैसा कल्चर है, वहाँ पे जो है वो मिलने मिलाने के लिए, आप एक सर्वाइव करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, ये सब जो है वो कैसे वहाँ पे डिफरेंट है और आपने कैसे वहाँ पे करना है, कैसे करना है. बिल्कुल. ये तो लाइक इट्स रियली वेरी ऑब्वियस. लाइक अगर हम लोग बात करें अपने मुल्क की भी, बिल्कुल. टॉक अबाउट पाकिस्तान, so the thing is that the culture, the tradition, it varies from place to place, from country to country, from city to city. Even अगर आप हम अपनी एक सोसाइटी की बात करें, अगर हम पेशावर की स्पेसिफिकली बात करें, तो जो हयाताबाद का लाइफस्टाइल है, जो उधर के लोगों का अपना एक मतलब एक सेटअप है ना, वो पेशावर के सिटी एरिया में आप आ जाएं तो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है. इसी तरह आप डिफेंस चले जाएं, सदर चले जाएं, तो या द थिंग इज दैट इट वेरीज. The culture varies from place to place in each and everything. Yes. So here we are talking about like we are helping those students who tends to travel abroad for their higher education. तो होता क्या है कि उनको उन कॉम्प्लिकेशंस से हम लोग बचा रहे होते हैं कि जिनका सामना उनको फ्यूचर में करना पड़ता है. और ये जो विजन है ये हमारे CEO साहब का है, दैट लाइक एज मिस सदफ हैज मेंशन्ड कि आवर हायर अप्स have spent most of their time in United Kingdom, and he knows the ups and downs of the cultural traits and all those things. So what his vision is to provide his students who like tend to visit the abroad, जो जिन्होंने बाहर जाना है, वो उनका एक माइंडसेट बनाना चाहते हैं कि बाहर के मुल्क जाके ऑब्वियसली आपको कुछ हार्डशिप्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है, तो उनको हम ओवरकम कैसे करते हैं. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है लॉज एंड पॉलिसीज की. ऑब्वियसली वी आर फेमिलियर टू द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ आवर ओन कंट्री. वी डोंट नो अबाउट द countries like in United Kingdom, in United States of America, we don't know about their laws and policies. तो अगर हम इस बारे में बात करें तो there is these some terminologies that I am familiar to, that is the proof of ID, the proof of address. What kind of knowledge can you provide us with? Okay, जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर तो sometimes they are asked to provide the government, the officials over there with proof of ID and proof of address. ठीक है. तो proof of ID is basically they are asking you if you have traveled here, you are here
थ्रू प्रॉपर चैनल और नॉट, इफ़ यू आर इलीगल। तो वो जो है वो सब देखने के लिए जो है दे आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ आईडी। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो है वी कैन शो देम आर यूटिलिटी बिल्स। जी, यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए जो है वी कैन प्रूव आर एड्रेस। अच्छा, यानी कि आप अपने वहाँ होने का एहसास उनको इन चीज़ों के थ्रू कराते हो कि देखें भाई हम आपके बिजली के बिल पे कर रहे हैं, तो ये तो वो है, ऐसे ही है। यूटिलिटी बिल्स में तो फिर यही सारी किस्से कहानियाँ होती है ना। क्या बात है जी। तो देखिए जी, तो जब हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हैं तो हम सिर्फ उनके कपड़ों की बात नहीं कर रहे, हम अगर उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो हम उनकी खुराकें नहीं डिस्कस करें कि व्हाट काइंड ऑफ पिज्जा एंड व्हाट काइंड ऑफ पास्ता एंड लजानियाज आर दे टेकिंग और ईटिंग, और पता नहीं क्या क्या उनके पास स्टारबक्स में क्या क्या वैरायटी उनके पास मौजूद है। हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल अब्रॉड, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। उसके अंदर आपके साथ हम अकोमोडेशन भी करते हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर अपने लाइव सेशंस की बिगिनिंग में जो है शेयर करती हूँ, दैट इज़ द प्री एंड द पोस्ट डिपार्चर टिप्स। तो उसमें मैम आप क्या बताएंगी कि मतलब वो यहाँ से जाने से पहले के हालात और वहाँ पहुँचने के बाद के हालात जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं। असल में बेसिकली होता ये है अक्सर जो है, चूँकि अभी मैंने बताया कि कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री का और जो बाकी कंट्रीज़ हैं। तो हमें पता नहीं होता कि हमने वहाँ पे जाने से पहले जो है वो क्या करना है, वहाँ पे पहुँचने के साथ क्या करना है, हम कैसे अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे। बिल्कुल मतलब क्लूलेस होते हैं, क्लूलेस होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब प्री डिपार्चर में जो है हम उनकी हेल्प कराते हैं, टिकट बुकिंग में कराते हैं हम उनके लिए जो है बाकी जो उनके जो रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे जाने से पहले, फॉर एग्जांपल जो है करेंसी का प्रॉब्लम है, अगर करेंसी का डिफरेंस है तो वहाँ पे कौन सी करेंसी लेकर जानी चाहिए आपको। पास आपको जो है अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है लेकर जानी चाहिए, जो इमिग्रेशन पे के वक्त जो है वो आप जब इंटर करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो जी, तो वो जो है अच्छा। वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा के कंप्लीट जो है वो हम कंप्लीटली जो है वो उनको गाइड करते हैं। और पोस्ट डिपार्चर में जो है सॉरी एक एडिशन करने में भूल गई कि प्री डिपार्चर में जो है हम यहाँ से अपने स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन की भी वो थोड़ा सा वो आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। अच्छा, तो वो रिजर्वेशंस करा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, हम यहाँ पे बैठे बैठे जो है यहीं से ही अपने लिए बुकिंग करा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डोंट हैव द नेसेसरी एक्सपोजर टूवर्ड्स दैट। तो करेक्ट आइडिया नहीं जी बिल्कुल। तो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो करेक्ट आइडिया देते हैं, वो जो है वो उनको गाइडेंस देते हैं कि आप इस ज़रिए से जो है अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। और पोस्ट डिपार्चर में जो है वो हम वहाँ पे जो है फेमिलियराइज करने के लिए हमारे जो होता है हमारा चूँकि एक ऑफिस जो है वो वहाँ पे लिवरपूल में भी बेस्ड है। तो इफ़ एनी स्टूडेंट्स जो है वो कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है, दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, दे कैन कॉन्टेक्ट आवर लिवरपूल हेड ऑफिस एज वेल। तो वहाँ पे के थ्रू जो है फिर हम उनके लिए वहाँ की हेल्प करते हैं। All right, so guys, like we've always told you tell you कि like FutureServe Overseas Education Services is an international education advisory. हमारा जो हेड ऑफिस है that is in Liverpool, United Kingdom. तो आप लोग जब यहाँ से ट्रैवल करते हो, आप वहाँ जाके अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, आपको एकोमोडेशन में इशू हो रहा है, आपको किसी किस्म का भी इशू हो रहा है, so we give you the relevant information, we give you the contact numbers and details, the email IDs and everything that is related to FutureServe, the head office of the FutureServe. तो आप वहाँ जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और डेफिनेटली FutureServe is going to like accommodate you, facilitate you in such regard. So ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है because we don't know anything about the place we are going. हम लोग सिर्फ जा रहे हैं इस पर्पस के साथ कि हमने वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करनी है, but this isn't it. You have to be mindful of the facts कि आपको वहाँ जाके बहुत सारी इनकन्वीनियंसेस भी का भी सामना करना पड़ सकता है, आपको उधर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगेन मैं वो वाला पॉइंट यहाँ पे रेस करूंगी, हम तो एक शहर से दूसरे शहर जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं,
हम मतलब हम इस तरह के कराची चले जाएं तो हमें नहीं पता होता कि वहाँ के क्या कल्चर्स हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल। कैसे हैं, उनका उठना वहाँ पे बैठना हमें कैसा है, कहाँ पे जाना है, हमें एकोमोडेशन नहीं कहाँ पे पता मिलेगी, होता। हम बिल्कुल। क्या करना है, कौन सी जी चीज़ हाँ। कहाँ पे हमें अवेलेबल होगी, हमें क्या ये चीज़ें खाना है। हमें बिल्कुल हाँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता। या तो वो सब जो है वो मतलब वो भी हमारे लिए एक हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देर तक हेल्प के बगैर नहीं रह नहीं सकते। रह सकते। तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही अलग किस्म की हम कहते हैं कि हाँ एक अलग दुनिया है वो जो है जहाँ पे हम ये लोग जाना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। तो वो सब जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस उनको फेस ना हो। चूँकि हमारे जो सीईओ हैं वो खुद भी जी हाँ। इस सब से गुजर चुके गुजर हैं। चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, जो ये जनरेशन है, उनको वो सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो 18-20 साल पहले उनको फेस करनी पड़ी थी। और वो तो 18-20 साल पहले की बात है, अब तो और चीजें एडवांस हो चुकी हैं, और चीजें बिल्कुल, बिल्कुल, कॉम्प्लिकेटेड हो बिल्कुल, चुकी हैं। बिल्कुल। और कोविड ने तो आके वैसे ही इतना ज्यादा वही बात है क़यामत डाल दी है हर जी, तरफ, जी। तो वो चीजें जो है वो डबल ट्रिपल हो गई हैं बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन के तो लिहाज उस से। सब चीज़ों से बचाने के लिए जो है वो हमारे सीईओ जो है वो इस विज़न के साथ, इस आइडिया के साथ आए हैं कि हमारे जो सर्विसेज, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो हमारा स्टैंडर्ड सर्विसेज है, या उसमें एक ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के नाम से, ताकि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके वो ना हो, सफर गुमराह ना करें, हो। गुमराह ना हो, सफर ना करें। अच्छा, यस। यहाँ पे एक और चीज है जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। एक पहली बात तो ये आपने याद रखनी है दैट फ्यूचर सर्व इज प्रोवाइडिंग यू विद अ जेन्युइन एडवाइस। हम यस। आपको वो, जैसे हमारे सीईओ साहब के साथ भी मैंने लास्ट टाइम जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने उसमें बड़े मजे की बात की थी कि हम आपको सबस बाग में दिखा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। इफ यू आर यू नो लाइक परफेक्टली रेडी, आप कर सकते हैं, आपका सर्वाइवल पॉसिबल है अब्रॉड में, तो हम आपको कहते हैं एग्जैक्टली, डेफिनेटली यू आर सेट एंड रेडी टू गो। बट अगर हम देखते हैं कि आप किसी न किसी पॉइंट पर आके स्टक हो जाते हो, तो हम आपको वहीं पे पॉज कर देते हैं कि नहीं, it's not your right time, you have to work hard on your different things, like you have to improve your qualification, you have to improve your skills, you have to do so much so forth, like आपको अपनी English language के ऊपर काम करना। there are so many things we have in our basket, all what you need to do is to walk into FutureServe and we can provide you with our services and each and every services, दैट इज फॉर श्योर। तो अच्छा, यहाँ पर एक और बात होती है कि हमारे स्टूडेंट्स का वहां पे जाने का एक माइंडसेट होता है कि बस जाएंगे, पढ़ेंगे, बस यार बस स्किप कर जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे। तो हमें उनको ये भी मैसेज कन्वे करना चाहिए कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ऑब्वियसली ये भी नॉट हमारे अ पीस ऑफ केक या एट ऑल। या एट ऑल। इट्स नॉट अ कप ऑफ कॉफी एट ऑल। तो अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आप इलीगल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो हम आपको ये गाइडलाइन भी देंगे कि वहां जाके इलीगल होकर सर्वाइव करना तो फिर बेतहाशा मुश्किल है। क्योंकि देखें, आप ट्रैकर्स की जैसे बात होती है, आपको वो ट्रेस कर रहे होते हैं, आपको वो फॉलो करते हो, जहां भी उन्होंने आपको पकड़ लिया विद इन अ मिनट वो आपको रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप कौन सा मुंह लेके और अपने फिर मुल्क जो वापस है आएंगे? जो ये प्रॉब्लम अगर मतलब अगर ट्रैक हो गए जी आप, हाँ, तो मसला ये होता है कि आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं होता, नहीं होता है। और फर्दर जो है आप दोबारा भी आने से जो है वो उनके कासिर हो ब्लैक जाए, लिस्ट में आ जाते हो blacklist कि ये बंदा जो है इसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, जी तो हाँ, ये जो है ये यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए। और नहीं आना ऑब्वियसली इफ चाहिए। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट किसी एक कंट्री का हो गया है तो को दूसरी दूसरे कंट्री से आपको कंट्री में तो वो आप जाने का सोची भी नहीं, ऐसा हो क्योंकि ही ये नहीं तो सकता। फिर मतलब वो भी तो हिस्ट्री चेक करेंगे ना, हिस्ट्री तो चेक होती है। डेफिनेटली होती है। और वही बात है, आपके पासपोर्ट पे भी वो डिपोर्ट होने का एक स्टैम्प आ जाता है। अब तो जी इट इज नॉट ओनली अबाउट योर ओन रेपुटेशन, योर ओन इमेज, इट इज ऑल्सो अबाउट योर ओन कंट्री, इट इज बिल्कुल, अबाउट बहुत बहुत। पाकिस्तान, इट्स अबाउट योर नेम, इट्स अबाउट योर इमेज। सो आप हुब्बुल बतनी सिर्फ बातों की हद तक ही मत दिखाएं, इसको मतलब एक अमली जामा पहनाएं, अपने कौल अपने फेल में तजाद मत रखें। अगर आप लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं तो इस विजन के साथ जाइए कि आपने वहां जाके अपनी कोई अचीवमेंट करनी है, यू आर देयर यस। विद योर स्टूडेंट वीजा। एंड प्लस पॉइंट इज कि वो आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज जब ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्हाई टू टेक रिस्क, एक्सपेरिमेंट्स करने की क्या जरूरत है, जब आप एक लीगल तरीके से एक स्ट्रेट पैथ के ऊपर चल सकते हो, डायरेक्ट आप लोग जा सकते हो, डायरेक्टली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, आप अपने करियर के ऊपर काम कर सकते हो, तो व्हाई टू टेक रिस्क, why to take U-turns, why to take yourself for granted. So you have to understand all of these things, and Future Serves is actually here to serve you in such regard कि हम आपके फ्यूचर के को लेकर, आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा ज्यादा मैम, कंसर्न मैं है। यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी या शो कि इफ़ वी ऑब्जर्व आवर कंट्री, तो यहाँ के लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अ बिट लीनियंट। या
जबकि हम जब वहाँ पे जाते हैं तो देयर लॉज एंड यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। यस ठीक है, तो हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम रेड लाइट है और हम जो है वो कोई वहाँ पे वो नहीं है, गाड़ी नहीं है और आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो इससे कोई मसला नहीं होगा। Exactly. नो नो नो, ये तो सोचे ही नहीं कि आप लोग यहाँ पे जिस तरह लॉस को वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा कर पाएंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू विल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि अगर आप एक लॉ को जो है वो अनइंटेंशनली ही सही आप करते हैं तो वो भी जो है आपके उसमें आ जाता है, आपकी हिस्ट्री में आ जाता है। वो डायरेक्ट आपके होम ऑफिस को जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि इस बंदे का जो है ये चीज़ इसने की हुई है जो कि लॉ के खिलाफ है। लाइक लॉ वायलेशन इज जी, तो वो जो है बिल्कुल, तो ना? वो जो है वो दोबारा से मैं वही बात करूँगी, ये सब चीज़ें जो है वो फिर आपकी जमा होकर आपके वीज़ा के जो है वो एक्सटेंशन के में वो आ जाती है, खलल डालती है, बहुत प्रॉब्लम डालती है। एग्जैक्टली तो ये चंद चीजें थी। आई थिंक इट्स इनफ। व्हाट डू यू से? या डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर फर्दर? नो। तो वही बात है कि ये वो वाली चीज़ें हैं जो वक्तन फवक्तन सामने आती हैं। वी हैव शेयर्ड इनफ विद यू पीपल। लेट मी समराइज द सेशन। तो आज हमने आपके साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर पर बात की है। तो जो चीज़ें मैं आपको हमेशा वो मोटी मोटी सी हेडिंग्स बताती रहती थी कि हम पोस्ट एंड प्री डिपार्चर टिप्स देते हैं, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल टिप्स देते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल एक्सपोजर। सो टुडे वी हैव टॉक्ड रियली ब्रीफली अबाउट ऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर. I am really sure that you guys will find this live session interesting. The information was accurate, relevant, and there is no doubt into it. So guys, please, if you have any queries, you can write down in our comment box below. We appreciate your efforts. We appreciate the way you guys are giving us support, and your kindness. It matters to us a lot. So this is it for today. I'll recommend you to visit our Facebook page regularly so you'll never miss the chance to attend our live session. Future Serve Overseas Education Services is always here to serve you. Take good care of yourself and do remember us in your prayers. Thank you so much.